Okay, students. So today we are meeting to touch upon a topic which is widely discussed as far as organic chemistry is concerned, and that is discussing the acidic nature of alcohols and phenols. Okay. Now, prima facie, to understand this, let's understand that what type of alcohols exist in organic chemistry. Okay. So we have CH3 CH2OH. Okay, we have CH3 CHOH CH3, and then we have COH CH3 CH3 and CH3. Now if you see, typically this OH group is attached to a carbon which is again attached to one carbon. So such alcohols are known as primary alcohols. Okay. When the OH group is attached to a carbon which is attached to two other carbons, such alcohols are known as secondary alcohols. And when the OH group is attached to a carbon which is attached to three other alkyl groups or three other carbons, then these are known as tertiary alcohols. Now, since we are talking about the acidic nature of these alcohols, which means that each alcohol should release acidic hydrogen. Okay. Now, in terms of acidic hydrogen for an alcohol or typically an acid or anywhere, what you need to understand is that the hydrogen which is attached to the most electronegative atom in the entire molecule, that becomes the acidic hydrogen. Okay. So, जो भी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है, दैट इज नोन एज एन एसिडिक हाइड्रोजन. और जब ये हाइड्रोजन एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज होता है तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का एसिडिक नेचर डिराइव होता है. जनरली जो क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं या इवन एंट्रेंस में भी आते हैं, तो उसमें ऑर्डर पूछा जाता है ऑफ सच एल्कोहल्स. ओके. Now, see what you need to understand. Now, see, all the three alcohols will have a tendency to release a proton. Okay, and that can be checked when all the three alcohols can be reacted with a highly reactive metal like sodium. The sodium will replace this acidic H and it will form the respective alkoxides. Okay. But then how do we derive the nature of reactivity of such alcohols? Now there are two aspects to this. Okay. When we are talking about the acidic nature, that means we are talking about the cleavage of OH bond. यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूटना चाहिए आसानी से, तभी H एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा और वो हाईली एसिडिक होगा. अब इस केस को समझिए. इस केस में जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं, यहां से यहां और यहां से यहां, द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इज इंक्रीजिंग. तो उसकी वजह से क्या होता है, the polarity between carbon and oxygen bond increases. यानी कि ये जो यहां पे हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड यहां पे और अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं, तो तीनों केसेस में कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड की पोलैरिटी
बढ़ती जाएगी अगर हम इन तीनों केसेस में एल्काइल ग्रुप्स को बढ़ाते जाएंगे। बॉन्ड के केस में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई एक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है शेप में, तो उस केस में अगर एक बॉन्ड की पोलैरिटी या बॉन्ड लेंथ अगर आप कहेंगे वो बढ़ती जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरा बॉन्ड उसके बगल में है उसकी बॉन्ड लेंथ या पोलैरिटी जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। क्यों ऐसा होगा? जिससे कि जो नेट चेंज इन द मॉलिक्यूल है वो ज्यादा वेरिएशन ना क्रिएट करे और स्ट्रक्चरली वो मॉलिक्यूल स्टेबल बना रहे। ठीक है, तो अगर यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन की पोलैरिटी बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो पोलैरिटी है वो डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज करने की वजह से बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का स्ट्रेंथन होता जाता है। सो द बॉन्ड गेट्स स्ट्रेंथन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन if the polarity between the carbon and oxygen is increased. So second thing which you need to understand is the polarity between carbon and oxygen increases when we are talking about cleavage of OH bond. Therefore, polarity between oxygen and hydrogen decreases, and both the things happen when number of alkyl groups increases. Okay, so when number of alkyl groups are increasing, these are the two changes which are seen. Now because of this, if I ask the reactivity of acidic nature and its order for a primary alcohol, for a secondary alcohol and a tertiary alcohol, the order will be decreasing, which means the tertiary alcohol will show the least acidic character because of this reason, while the primary alcohol will show the most acidic character again because of this reason. Okay, so this is the first part. Now the second type of question which comes generally for the reactivity of alcohols is that if any chemical reaction is happening, then what is the order in which the three alcohols will react? Now, here in the second part we talk about reactivity of alcohols by cleavage of CO bond. Now when we are talking about the reactivity of alcohols by cleavage of CO bond, of course we are not talking about the acidic nature of those respective alcohols. We are talking about the reactivity where the entire OH group is going to break from the molecule. तो यहां पे हम उस सिचुएशन को पढ़ने वाले हैं जिसमें कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, और जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा उसमें जो OH ग्रुप है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। अगर उसमें हम ऑर्डर की बात करते हैं तो जो चीज मैंने इसके पहले आपको समझाई कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा आ रही है तो वो बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, क्योंकि नेट चेंजेस इन अ मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि वो उसकी स्टेबिलिटी को हैम्पर कर रहे हैं। अब इस केस में जो ऑर्डर हो जाता है रिएक्टिविटी का, उसमें टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सेकेंडरी अल्कोहल से ज्यादा होती है, जिसकी रिएक्टिविटी प्राइमरी अल्कोहल से ज्यादा होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो समझ के सॉल्व करिएगा कि वो क्या पूछ रहा है आपसे। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स अगर हम बात करें क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड की, तो रिएक्टिविटी बिल्कुल उल्टा हो रहा है जो हमने एसिडिक नेचर में देखा। अब ऐसा क्यों होता है? अब देखिए,
अगर हम यहां पे टर्शरी अल्कोहल में से OH ग्रुप को बाहर करें तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब बॉन्ड टूटेगा तो वो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टूटेगा। तो जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ टूटेगा तो जो चार्ज कार्बन के ऊपर आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको टर्शरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर टर्शरी में टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो सेकेंडरी में सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा और प्राइमरी में प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है एज पर जीओसी वो क्या कहती है कि टर्शरी अल्कोहल में टर्शरी कार्बोकैटायन, ओके, सेकेंडरी अल्कोहल में सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और प्राइमरी अल्कोहल में प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है। तो टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि प्लस आई यानी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जैसे ही यहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो ये तीनों एल्काइल ग्रुप्स बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट उसको स्टेबलाइज कर देंगे। ओके, सो दैट विल गेट स्टेबलाइज्ड, ऑल द थ्री, दिस विल गेट स्टेबलाइज्ड. So there are three groups which are stabilizing a carbocation. Here there are two groups which are stabilizing a carbocation. Here there is only one group which is stabilizing a carbocation. So obviously the stability order of carbocations is in this fashion. Therefore, because of this cleavage, the entire OH groups get separated in this order and the reactivity also is maintained in this order. So there is a major confusion of students, so that is why I am making this video, where they don't understand when to put which order. So you have to see for which reaction you need to put in which type of a question or an answer which is related to this. Okay, so this was prima facie the first part as far as the acidic nature as well as the cleavage of CO bond and its reactivity is concerned. Now let's come down to the second part of this, where we are talking about the stability of aryl alcohols. Now aryl alcohols are basically groups which are attached to OH containing a benzene ring. Okay, so the most famous aryl alcohol is our phenol. Okay, now this phenol, if I compare the acidic nature in terms with aliphatic alcohol, then we find that phenol is much more acidic than a normal aliphatic alcohol. Now why is this? I am going to draw certain resonating structures which will actually help you understand that how is it helping this particular compound to become more acidic than aliphatic alcohol. Now see, I am drawing the structure of phenol. Okay, so this is phenol. In the next resonating structure, this has two lone pairs, so here it will donate a lone pair to form a bond. We cannot have two consecutive bonds, लगातार डबल बॉन्ड नहीं हो सकते हैं रिंग में, ये बॉन्ड यहां टूटेगा. So the next structure what we have is this will become minus because the bond is breaking. Here we have a double bond, here we have OH and we have a positive charge on oxygen because it has donated a lone pair. So we have a double bond like this and a double bond like this. Now this negative charge will circulate in the entire ring. So this comes here, this will come here. Any aspect of resonance involves end-to-end conjugation. Okay, so we start from one place and we end at one place. So here the direction of arrows will always be unidirectional. You cannot have arrows, दोनों तरफ से arrows नहीं बनाने, आपको arrows unidirectional बनाने. अब जब आप यहां बनाएंगे तो ये यहां पे माइनस आएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां O आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा. अगेन इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें
ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, ये डबल बॉन्ड यहां टूटेगा और ये आपको यहां पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एंड H, सो यू गॉट अ डबल बॉन्ड हियर, यू गॉट अ डबल बॉन्ड हियर, ये यहां पे बॉन्ड बनाएगा और ये वापस चला जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो पहला और आखिरी जो है वो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो यहां पे ये OH बन जाएगा, लेकिन बॉन्ड्स की लोकेशन और पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। ट्रिपल बॉन्ड यहां पे देखिए और यहां पे आप क्या कहते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड्स देखिए, डबल बॉन्ड्स के जो तीन एस्पेक्ट्स है इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। नाउ व्हेन वी आर कंपेयरिंग द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, दैट मींस इट कैन वेरी इजीली गिव यू H इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो फिनॉल को फायदा क्या हो रहा है अगर वो H प्लस को आसानी से रिलीज कर रहा है? फायदा देखिए क्या हो रहा है। मैं सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, लेकिन ये जो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसमें H गायब है, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। अब ये रेजोनेंस में जाएगा, तो जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो यहां पे इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, माइनस डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड एंड O। अगेन जब फर्दर हम इसमें रिएक्शंस करेंगे तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, ये यहां पे आएगा और ये यहां पे आएगा, सो माइनस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, this will move here, this will move here, so this comes here, minus charge comes here, there is a double bond here and there is a double bond here, and this moves here, this again comes back here, so we get O minus again, but with the placement of the three double bonds within the ring we will have a different placement. Okay, now see the difference. In this resonating structures, there is a positive charge which is coming on oxygen. Whereas in the second state of resonating structures, you can see that there is no positive charge coming on the oxygen. So obviously, the second line of resonating structures is much more stable than the first line of resonating structures. तो अभी ये बात हो रही थी ना कि फिनॉल को फायदा क्या हो रहा है, तो ये फायदा हो रहा है, अगर वो H प्लस को रिलीज कर देता है तो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, तो जो फिनॉक्साइड आयन होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक नेचर और बढ़ जाता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि फिनॉल एलिफेटिक अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है, इसलिए है क्योंकि जब फिनॉल में से हाइड्रोजन निकल जाता है तो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, इस वजह से वो ज्यादा एसिडिक है। अब इसमें इस केस में हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट को और बेटर देख सकते हैं। तो क्या देख सकते हैं, हमारे पास दो टाइप ऑफ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर तो हमें समझ में आ गया कि फिनॉल इज मच मोर एसिडिक देन एलिफेटिक अल्कोहल। अब इसमें जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जैसे एलिफेटिक अल्कोहल में प्लस आई माइनस आई है, वैसे ही इस केस में प्लस एम एन माइनस एम एन, ठीक है, या प्लस आर एन माइनस आर है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज बेसिकली प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट, while electron withdrawing group is minus R or minus M effect. So if we are adding an electron donating group, that will increase the electron density of the ring, which will in turn increase the electron density on oxygen, which will decrease the polarity between oxygen and hydrogen. तो बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर रिड्यूस हो जाएगा। जबकि अगर हम माइनस आर माइनस एम इफेक्ट देखें तो हम बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं,
जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे भी कम हो रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड वीक हो रहा है और हाइड्रोजन आसानी से निकल रहा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि फिनॉल और अच्छे से एसिडिक बने, तो हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। सो इस केस में एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल दिस इंक्रीजेस। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और जिसका नाम है पिक्रिक एसिड। तो इसको पिक्रिक एसिड क्यों कहा गया है? ये तो अल्कोहल है लेकिन फिर भी इसको एसिड कहा गया है। क्यों एसिड कहा गया है? क्योंकि 3 नाइट्रो ग्रुप जो है वो इतने बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं कि वो इतना ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं कि तुरंत H जो है वो रिलीज हो जाता है। IUPAC नेम इसका हो जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विच इज नोन एज पिक्रिक एसिड। तो फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, अब हम समझते हैं थर्ड वैरायटी जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन जो है वो एसिडिक नेचर ऑफ वाटर और एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल के बीच का रिलेशन बताता है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आता है कि बिटवीन वाटर एंड बिटवीन अल्कोहल एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है और किसका कम है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वाटर का एसिडिक नेचर ज्यादा है और ROH का एसिडिक नेचर कम है। क्यों? इस कॉन्सेप्ट को हम ब्रॉन्स्टेड थियरी के हिसाब से समझाएंगे। कैसे समझाएंगे? H2O जब आयनाइज करेगा तो वो हमें H प्लस एंड OH माइनस देगा इन सोल्यूशन, जबकि जब अल्कोहल एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो ये हमें H प्लस प्लस RO माइनस रिलीज करेगा इन एक्वस सोल्यूशन। अब एज पर ब्रॉन्स्टेड थियरी हमेशा ऐसा होता है कि जो भी कंपाउंड है उसका जो भी कॉन्जुगेट बनता है उसके साथ हमेशा सीसॉ कॉन्सेप्ट मेजर होता है। कैसे मेजर होता है समझिए। H2O ने हमें यहां पे OH माइनस रिलीज किया, या इसको अगर और अच्छे से समझ ले तो इसको हम HO माइनस लिख देंगे क्योंकि माइनस जो है वो O पे ही आएगा। तो HO माइनस पे अगर आप देखेंगे तो ये H ग्रुप का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि GOC के हिसाब से H का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, चाहे वो प्लस आई का हो चाहे वो माइनस आई का हो, वो बस एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज होता है। तो इसका मतलब वाटर का जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो वीक बन रहा है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में वीक बन रहा है? अल्कोहल के, क्योंकि हम इन्हीं दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। RO माइनस में प्लस आई इफेक्ट की वजह से R का जो प्लस आई वैल्यू है वो ऑक्सीजन को और अच्छा उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और उसको और अच्छा बेस बना देगा। सो दिस इज अ वीक बेस and this becomes a strong base. So as per seesaw concept, if this is a weak base, the acid is strong, because this is what the Bronsted concept, seesaw concept says. And if we have a strong conjugate base, which means this is a weak acid. Okay, so because of this theory, now both the bases are conjugates. So they are conjugates because they have lost a proton and formed a base. So again I am repeating, H is a reference point. It does not increase the electron density in oxygen, whereas R, because of plus I effect, increases the electron density on oxygen, making it a strong base. So again its conjugate on the other side makes it a weak acid, and this is a strong acid. Therefore water is strongly acidic in comparison to alcohol. So this sums up all the types of variations which can be asked in terms of alcohols. Okay, for any queries you can definitely contact me. Okay, you can message me if you have any doubts on this, and
definitely don't forget to like, share and subscribe.